Welcome, guys. We have started this lecture series, and in this lecture series, we shall be attempting the questions which are asked in your NCRT text. Remember, these questions are very important with respect to your board examinations as well as with respect to your NEET examination. So far as the first question is concerned, the first question of the Animal Kingdom, chapter number 4, goes like this: what are the difficulties that you face in classification of animals if common fundamental features are not taken into consideration? So over here you are asked that what are the difficulties which we face in classification of organisms if we do not take the fundamental features not into consideration. You already know that we have taken many fundamental features into consideration while classifying the organisms. For example, the symmetry, for example, the grade of organization, the concept of diploblastic or triploblastic animals, the concept of eucoelomates, acoelomates, pseudocoelomates, segmentation, and all these factors. So the question goes like this: that what are the difficulties which we face if we do not take the basis of classification into consideration? Let's see how the answer of this question goes. For classification of living organisms, common fundamental characteristics are concerned. So again, we are over here said that for classifying the organism, there need to be some fundamental considerations. If we consider specific characteristics, if we consider these characteristics, then each organism will be placed in separate group. It's possible to place an organism into separate group only when we take these considerations into account, and the entire objective of classification would be achieved. So it means that only the objective of classification is achieved when we focus on the basis of the classification. Classification of animals is also important in comparing different organisms and judging their individual evolutionary significance. If only a single characteristic is considered, then this objective would not be achieved. So it also says that when we compare a large number of characters, we also find out the evolutionary relationships between different organisms. This is the first question. Second question पे आते हैं, if you are given a specimen, what are the steps that you would follow to classify? इट मीन्स अगर आपको कोई स्पेसिमेन दिया गया है या स्पेसिमेन दिया जाएगा, आप कौन से स्टेप्स लेंगे इसको क्लासिफाई करने के लिए? स्पेसिमेन मीन्स फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिया गया है तो आपको इसकी क्लासिफिकेशन देखना है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो द आंसर गोज लाइक दिस: देयर आर सर्टेन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स दैट हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दीज फीचर्स कैन बी यूज्ड इन क्लासिफिकेशन एज फॉलोज. तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो फीचर्स हम लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए वो कुछ इस तरीके से हैं. लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रादर, क्या ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेट्स, इन सिलेंट्रेट्स यू सी देयर इज tissue level of organization. In higher animals you see there's organ grade of and then organ system grade of organization. So if you are given a specimen, you have to classify it, you have to first of all take into consideration its grade of organization. Then the second thing is that you have to take into consideration the body cavity, that is coelom, that you have to see is the coelom present or is the coelom absent. Then you have to take into consideration the symmetry, is the symmetry radial or bilateral. For example, in case of coelentrates, the symmetry is radial. In case of platyhelminths, nematohelminths, eschyhelminths, higher animals, there is bilateral symmetry. Then you need to take into consideration the type of coelom development. देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि सीलम का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है. इज द ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट? अगर कोई सीलम नहीं है देन इट्स एसिलोमेट. इफ देयर इज फॉलोसीलम इट इज सीडोसिलोमेट. देन if there is coelom then it is true coelomate. You also know that in true coelomatic condition there are two conditions, that's chazocoelomates and anterocoelomates. टाइप ऑफ सीलम वही यहाँ पे शेजोसिलोमेट है कि एंटीरोसिलोमेट. यू नो व्हाट इज शेजोसिलम एंड एंटीरोसिलम. द सीलम फॉर्म्ड बाय द splitting of the mesoderm is शेजोसिलम and the coelom derived from the pouches arising from the archenteron forms the enterocoelom. Then there is next question: how useful is the study of nature of body cavity and coelom in classification of animals?
एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में क्या अहमियत है सीलोम की? अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे तो सीलोम की क्या अहमियत है? सीलोम इज अ fluid filled space between body wall and digestive tract. You all know that coelom is a space between body wall and alimentary canal. You know that the presence of the presence or absence of the body cavity or the coelom plays a very important role in classification of the animals. Animals that possess a fluid cavity between the body wall and digestive tract are known as coelomates. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एनिमल्स हैं जिनमें सीलोम है उनको coelomates कहा जाता है, जैसे एनालिडा हुए, मोलस्का हुए, arthropods, echinodermats, and chordates are examples of coelomates. On the other hand, animals in which the body cavity is not lined by mesoderm are known as pseudocoelomates. कई animals हैं जिनमें एक body cavity है लेकिन that's not lined by what we call as mesoderm. So that is pseudocoelomatic condition. In such animals, mesoderm is scattered in between ectoderm and endoderm. उन जैसे animals में जो mesoderm है ये scatter किया हुआ होता है between ectoderm and endoderm. तो एस्की हेलमिंथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ pseudocoelomates. Pseudocoelomates की बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास एस्की हेलमिंथीज. In 10 animals body cavity is absent, they are known as acoelomates. कई ऐसे भी है जैसे platyhelminths उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है. तो बॉडी कैविटी है या नहीं है, अगर है तो क्या ट्रू सीलोम है या सीडोसीलोम है, तो ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं वाइल क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे डायग्राम दी गई है सीलोम की, सीडोसीलोम की, एसिलोमेटिक कंडीशन. Then there is question number 4. Remember, these are the questions of the NCERT text. Distinguish between intracellular और extracellular digestion. Intracellular और extracellular digestion में क्या फ़र्क है? लोअर लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता है. जो डाइजेशन सेल के बाहर होती है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. ये एलिमेंट्री कैनाल में यूजुअली होती है. तो जो सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है. तो यहाँ पे वही कुछ देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में. द डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स विद इन द सेल. जब सेल के अंदर डाइजेशन हो जाएगी फूड की उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाएगा. जैसे ये सेल है और इसी सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है. द डाइजेशन ऑकर्स इन द कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल. अब अगर एलिमेंट्री कैनाल में इस तरीके से डाइजेशन हो रही है तो आप कहेंगे ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है. Dietary enzymes are secreted by surrounding food into the food vacuole, by surrounding cytoplasm into the food vacuole. ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी ये एक वेसिकल में होगी जिसको आप कहते हैं फूड वैक्यूल. उसी में साइटोप्लाज्म के थ्रू एंजाइम में चले जाएंगे. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट किए जाएंगे इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आर डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. डायरेक्टली यहाँ से डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स फिर साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और यहाँ से डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स डिफ्यूज अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि आपको पता ही है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में चले जाते हैं. इट्स लेस एफिशिएंट मेथड. इंट्रासेलुलर डाइजेशन लेस एफिशिएंट मेथड है, इट्स मोर एफिशिएंट मेथड. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन जो है ये मोर एफिशिएंट मेथड है. इट ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इंट्रासेलुलर डाइजेशन लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है. It occurs in multicellular organisms. Extracellular digestion multicellular organism में होती है. What is difference between direct and indirect development? जब मैं आपको पढ़ाता था तो बहुत बार मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है. देखिए अगर एक ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट के दौरान कोई लार्वा फॉर्म नहीं है देन इट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट. मान लीजिए एक अर्थवर्म है. अर्थवर्म में क्या होता है, जाइगोट डायरेक्टली डेवलप हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो देन इनटू द ऑफस्प्रिंग. तो उन एनिमल्स में हम कहते हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है. अब अगर कोई एक है जिनमें लार्वल फार्म इन्वॉल्व हो जाती है, फॉर एग्जांपल एनालिडा के बहुत सारे फार्म्स में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है. अर्थवर्म भी एनालिडा है लेकिन उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. लेकिन कई एक है जिनमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है, या इकोनोडर्मेट्स में डेवलपमेंट होती है थ्रू लार्वा फॉर्म, या स्पॉन्ज में भी डेवलपमेंट होती है. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन्स हैं जिनमें लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट हो जाती है, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है डायरेक्ट डेवलपमेंट. इट्स अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग लार्वल स्टेज. यहाँ पे एक एम्ब्रियो मैच्योर इंडिविजुअल में डेवलप होगा लेकिन कोई लार्वल फॉर्म इसमें नहीं होगी. It is type of development that involves a sexually immature larval stage having different food requirements than adults. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक larval form इन्वॉल्व होगी. मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट. अब मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू लार्वा तब्दील हो जाता है किस में, एडल्ट में. अब यहाँ पे लार्वा ही नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस कहाँ से होगी.
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ लार्वा टू सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट स्टेज। तो यहाँ पे लार्वा जो है वो एडल्ट स्टेज में तब्दील होगा और उसमें वो सारी जो चेंजेस आएंगी वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ही आएंगी। इट ऑकर्स इन फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये फिशेस में होती है इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में, इट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस। ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल फॉर्म के थ्रू होती है और एम्फीबियंस में भी, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में टेडपोल लार्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, what are the peculiar features that you find in parasitic platyhelminths? parasitic platyhelminths के खास कुछ फीचर्स हमें बताइए जो उनमें आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एग्जाम्पल टीनिया है, यहाँ पे टीनिया को टेपवर्म आप कहते हैं, लेकिन देखिए टीनिया दो तरीके का होता है। टीनिया सजेनेटा, इट इज़ नोन एज बीफ टैपवर्म। टीनिया सोलियम, दैट्स नोन एज पोक टैपवर्म। पोक इज द फ्लैश ऑफ मीट ऑफ द पिग, जो पिग होता है उसमें ये पाया जाता है टीनिया सोलियम, और टीनिया सैजिनेटा बीफ में पाया जाता है। अब टीनिया जो है ये दोनों टेपरम कहलाते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा। और फैशुला, इसको शीप लिवर फ्लू कहा जाता है। ये दोनों हैं टीनिया या फैशुला, ये हैं पैरासिटिक प्लैटिहेल्मिन्थ्स। अब इनके स्पेशल फीचर्स जानेंगे हम। They have dorsoventrally flattened body and they bear hooks and suckers to get inside the body of the host। अब इनमें अगर आपने देखा होगा, ये इनमें हेड होता है, ये फिर स्कॉलैक्स, इस तरीके से इनमें हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, ताकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाए। द बॉडी इज कवर्ड विद थिक टिगमेंट विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि बॉडी के अंदर जाते हैं, एनिमल्स के बॉडी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई हार्म ना पहुँचाए, इसलिए क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इस तरीके की बॉडी, उस पर एक थिक लेयर होती है जिसको आप कहते हैं टिगमेंट। ऐसे टिगमेंट होता है इन पे, टिगमेंट। द टिगमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी। क्योंकि ये जो है इनमें यूजुअली डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और ये डाइजेस्टिव मैटर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी, वो भी टिगमेंट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द रीजंस। और एक यहाँ पे बात इन्होंने नहीं की है, आप ऐड कर सकते हैं कि इनमें सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे डेवलप्ड नहीं होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर लीस्ट डेवलप्ड इन केस ऑफ पैरासिटिक प्लैटिहेल्मिन्थ्स, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, एक सेफ एनवायरनमेंट में रहा करते हैं इनसाइड द बॉडी, देयर